Hi, Malia. How are you? Hi. Okay. I'm good. Thank you for taking your time out to discuss on our favorite topic, that is spirituality, faith, miracles, and the purpose of this channel is what I have thought is to just to only talk about miracles, no matter which faith you believe in, which or rather I would say which religion you come from, or but the important is that you believe in any divine power, you believe in God, you believe in any goddess. The idea is to spread miracles. The idea is to spread positivity and believe that God still exists. So just basic or a simple example, which I will say that before pandemic, I think humans start thinking that they can rule the entire world, but I think God has given a very strong sign that we cannot, or the nature has given a very strong sign that there's everything beyond human. There are many things which is beyond our understanding, and this is the phase which we are into. That we all are inside, shutting in our houses, and spending a quality time with our families, or is what I can say. So you're my first guest, and Thank you. I'll not take much time, but I want you to introduce yourself from the spirituality standpoint. That when did you realize that you're a very spiritual person, and in which divine God you started believing in? Yeah, over to you. Okay. First of all, thank you, Sonia, for having me here. I'm really, really honored. And of course, you know me since our childhood. We are childhood friends, so it's not a surprise that you would choose me. Also, I think I'm privileged, and because I belong to a family from Ajmer Sharif. I belong to. I can't say I belong to. I must say that I am the khadim of Khwaja Hazrat Khwaja Muhyiddin Chishti Rahmatullah Alayh. And when I say khadim means sevak in Hindi, and server, whatever you can call it in English. So we are one of those who does khidmat in Darbar Sharif. Yeah. Yeah. My family does that. My cousins do that. My relatives do that. So I come from a very huge family, very large family of more than 2,000 brothers and sisters in the community, and we are all responsible and I think say privileged to be able to serve in that Darbar Sharif. And I take pride in saying, although it's not my doing that I'm born in this family, or I'm born with to a saint, because my father himself was a priest and he was a saint. So, but of course, I feel maybe because of my good deeds, or या शायद अब्बा जान या अम्मी जान की अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला है, और मैं इस खानदान में, इस जगह पर, इस तीर्थ स्थल, you can say, I think when you say तीर्थ स्थल, it reminds me of we both are from Ajmer, and I know when जब कोई बोलता था ना कि those who cannot go Makkah and Medina, for them Ajmer Sharif is their Makkah Medina. So because everybody cannot afford Makkah Medina visit, everybody cannot afford Hajj. So उनके लिए Ajmer Sharif ही Hajj है. So that's what I remember still. No, बिल्कुल you are right, absolutely right. बहुत लोग, कई लोगों का तो मक्का मदीना भी यही है. Like my father, who always believed this is Makkah and Medina for him. He never visited Saudi for that. He never did in his lifetime. No, he never. No, he never did. So that's a classic example where he surrendered himself completely to Khwaja Sahib. Yes. And you asked me about spiritual standpoint. I think this say, I think मेरे लिए ना बहुत आसान रहा है सफर, because मैं जिस खानदान से पैदा हुई, और जो मेरे अब्बा जान है, मैं उस my father himself, as I said, कि वो खुद सूफी हैं, वो खुद सूफी थे. उन्होंने पर्दा फरमाया है, पर्दा मतलब समाधि ली है 2 साल पहले ही. तो हमने ना उनको देखा है कि सूफीज्म क्या होता है. हमने कभी डिक्शनरी में नहीं पढ़ा, हमने कभी किसी से सुना नहीं, क्योंकि सोनिया ऑनेस्टली स्पीकिंग आज बहुत धूमधाम है सूफीज्म, स्पिरिचुअलिटी, नो गॉड.
बट हम जब छोटे थे ना, हमारे टाइम पे स्पिरिचुअलिटी हम लोगों को नहीं समझ में आती थी. Of course, Let's of be course, ये honest. बहुत बड़ा और आजकल तो I Yeah, think that's what we've discussed this few days back, that ये तो मतलब people are paying to become spiritual, जबकि इसमें yeah. कुछ pay करने की जरूरत नहीं है. It should come from your, it should come from Actually, within. people, yeah, you're right. People are paying to become spiritual, and now it's a fad. It's a trend. It's a trend, yeah. I'm following. I follow spirituality. I'm not saying you don't know what does that mean. I'm not saying I'm no one to judge, because I'm Judge, still yeah. learning. I'm still trying to imbibe the quality of spirituality. I'm trying to learn every day that what does it actually mean. See, for some people, helping other is a spiritual gesture. And that's, I You think know? that's the biggest humanity cause which we can create: helping others, serving others, feeding others. That's the biggest Yeah. cause And which we can create. another misconception I feel people have is that spirituality has something to do with religion. So I just want to Yeah. clear that up. Spirituality has nothing to do with religion. चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो any other religion, and I bow my head to all the religions. All of I them. respect Yeah. them. I Yeah. think, And yeah, and it has nothing to do with religion. It has only to do with love and compassion. That's what my belief is. आपकी कुछ और हो सकती है, आपके लिए रिस्पेक्ट हो सकता है spirituality. I respect human beings. For me, it's like loving human being or any being or nature, or like how you said कि Mother Earth ने हमें एक जवाब दिया है. वो मदर अर्थ को भी प्रे करना इज स्पिरिचुअल इन इटसेल्फ. प्रे करना में ये नहीं कि आप उसके सामने जाके पूजा करो या आरती उतारो या फिर आप फूल पेश करो जैसे हम लोग करते हैं. इवन केयरिंग फॉर मदर नेचर, caring for the environment, caring for another human being is also spirituality. Okay. हम लोग So I think I think we know that the kind of feelings we share for spirituality, and that's the reason we are hooked on to each other for such a long time. And then now my second question would be that share something about Dargah Sharif from a Khadim standpoint. That what do you know which common people don't know about Ajmer Sharif and Dargah Sharif? I think most people know, and of course I belong to the family, so you would ask. This is very natural question. Voice is gone on mute. Are you on mute? No, I'm not. Yeah, now it's fine. Now I can hear you. Yeah. So I'm saying that is a very obvious question to ask, that आप वो बताइए जो हमें नहीं पता या किसी और को नहीं पता. पर दरबार शरीफ में ना ऐसा नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, वहाँ पे काफी पारदर्शिता है, काफी ट्रांसपेरेंसी है. जो रिचुअल्स होते हैं, जो दुआएं होती हैं, जो वहाँ पर इबादत होती है, जो वहाँ पे हाजिरी करने आते हैं, हाजिरी में दर्शन करने आते हैं, उन सबको पता होता है. कुछ ऐसा है कि शेड्यूल, हर एक तीर्थ स्थान के अपने शेड्यूल्स होते हैं. दरगाह शरीफ का भी अपना शेड्यूल है. सुबह 4 से 5 बजे, गर्मी और मौसम के हिसाब से चीजें डिफर करती हैं. तो वो दरबार शरीफ का खिदमत का वक्त होता है. खिदमत का वक्त होता है मतलब एवरी टाइम वी से द सेम थिंग कि हम लोग खादी में खिदमत करते हैं, बट दैट टाइम वी कॉल इट स्पेसिफिकली खिदमत का वक्त होता है, क्योंकि उस टाइम पे जब दरबार शरीफ के पट खुलते हैं तो जो भी होता है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अपना साफ सफाई करते हैं अपने जगह की, अपने तरीकों की. तो वहां पर सरकार के लिए कुछ लोग होते हैं जो अंदर जाते हैं दरबार शरीफ में और वहां का ध्यान देख रेख करते हैं, और फिर वो दरबार शरीफ लोगों के लिए खुल जाता है. तो जो खिदमत शरीफ है वो सिर्फ हम खादिम लोग, जो खादिम है, जो वहां पे खिदमत कर रहे हैं, जो उनकी फैमिली से हैं, जो उनकी फैमिली से हैं, वही लोग जा सकते हैं अंदर, और बाहर के लोग नहीं जा सकते. So again, it is a privilege, I must say. Yeah, we are privileged, and और फीमेल्स नहीं जाती हैं वहाँ पे उस वक्त पे. वैसे जा सकते हैं, बट वो जो मुकर्रर जो वक्त है उस पे नहीं जाती हैं. एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद हमारा जो पूरा, मैं आपको पूरा रूटीन बता सकती हूँ. उसके बाद फिर लोग जाते हैं. फिर दोपहर में एक और खिदमत शरीफ होती है वहां पर. फिर दोपहर में, क्योंकि माशाल्लाह इतने लोग आते हैं, इतने जायरीन आते हैं, इतने ख्वाजा साहब के चाहने वाले आते हैं
कि जब वो फूल पेश करते हैं, चादर पेश करते हैं, तो माशाल्लाह जगह नहीं रहती अंदर कि और लोग पेश कर सकें। तो उन सबको संभालने के लिए, उनको एक तरीके से रखने के लिए सब चीजों को, तो उसके लिए एक और एक तरह से आप ब्रेक बोल सकते हैं अंग्रेजी में, अगर आप बोलना चाहें तो वो ब्रेक होता है। उसके बाद फिर वापस दरबार शरीफ खुलते हैं पूरी खिदमत शरीफ के बाद, दोपहर की खिदमत शरीफ के बाद, एंड देन वो शाम तक रोशनी के वक्त चलते हैं 6-7 बजे, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, लाइक समर्स है कि विंटर्स है, उस हिसाब से टाइमिंग। वो रोशनी कहते हैं जैसे कि हर घर में होता है, शाम को दिया बाती का वक्त होता है, तो वो भी शाम को रोशनी का वक्त होता है, जिसमें सरकार की शान में रुबाई पड़ी जाती है, जो उनके पीर मुर्शिद ने जी हाँ, और काफी वो वहाँ पर मोमबत्तियां जलती हैं। सो इस तरह से फिर वो मोमबत्ती हमारे सरों पर रखी जाती है, जो भी वहाँ होते हैं, जायरीन हो, खादिम हो, खिदमत गुजार हो, स्टाफ हो वहाँ दरबार शरीफ का जो भी हो, सब वहाँ पे रहते हैं, और उनके वो जैसे मोमबत्ती ऐसे सरों पे रखी जाती है, तो इट्स लाइक अ प्रसाद यू कैन से। और उसके बाद फिर रात के 9-10 बजे अगेन डिपेंडिंग, दरबार शरीफ के पट बंद हो जाते हैं। Your favorite time to visit Dargah Sharif? Okay, my favorite is 2 times. First is morning 4 o'clock, because see, very less people are there, and you can just sit and just look and gaze into that Ummat Sharif, and because Mazar Sharif में तो personally मैं और हमारी फैमिली बहुत कम अंदर बैठती है, बट हम लोग बाहर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सो इट्स डिफरेंट फॉर अस, बिकॉज हम लोग उम्मत शरीफ को सिर्फ गेज करते हैं, और यू नो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग जब चिड़िया पीछे से चहचहाती हैं, पेड़ों के ऊपर, वहाँ पेड़ हैं, वहाँ पे वो चिड़ियाओं की आवाज, और ऐसा लगता है वो भी सलामी पेश कर रही है सरकार को, या गुड मॉर्निंग कह रही है, एंड देन यू लुक एंड देन यू जस्ट there's sometimes breeze and not breeze, and you're somewhere else. Right. And second time I like is रोशनी का time, because you know ऐसा लगता है सब कुछ रोशन हो चुका है, you know it's so much brightness all around you, you feel some different sort of energy. हर वक्त सरकार के दरबार में एनर्जी रहती है, एंड यू फील अमेजिंग, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि इतना मतलब ऐसा लगता है कि एकदम जैसे कोई हजारों लाखों करोड़ों बल्ब एक साथ जल गए हो, एंड देन यू आर bathing in energy and that light, and it's pouring from up somewhere from his blessings, so that is something I like it. And there's another thing, because I just mentioned that we don't sit inside too much and come out, because my father Abba Jan दरबार शरीफ के अंदर नहीं जाते थे, my father never used to go inside. And जब हम छोटे थे ना, तो हम लोग मैं और मेरे भाई, हम दो भाई बहन हैं, सो हम लोग हमेशा ही पूछते थे, अब्बा जान आप अंदर क्यों नहीं जाते दरबार शरीफ में, मतलब लोग दूर से आते हैं और अंदर क्या रोते हैं कि सरकार हमें बाहर तक बुला लीजिए, और आपको ये मौका मिलता है और आप अंदर तक नहीं जाते। तो बचपन में तो वो ना इस तरह टाल देते थे, नहीं कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, ताकि बट जब उनको लगा कि हम लोग ये चीज समझने के लायक हैं, तो माय फादर टोल्ड मी कि वो अदब का मकाम है, पता है उनको, वो ना आई हैव सीन हिम, वो दरबार शरीफ के बाहर भी खड़े होते थे ना सोनिया, तो वो नीचे निगाह करके खड़े होते थे, बैठते थे तो नीचे निगाह, उनकी निगाह भी ऊपर नहीं होती थी दरबार शरीफ के गुम्बद की तरफ। My God. So, yes, I'm getting goosebumps. Goosebumps, yeah, even I'm getting goosebumps, yeah. And I can visualize Baba Sahib, because unfortunately I couldn't meet him, you know, during the last days of his journey in this planet, but I still remember him very evidently कि हाँ मतलब वो कैसे कर रहे होंगे वो ये काम, मतलब जब भी वो खड़े होंगे तो कैसे खड़े होंगे वो, yeah. So when I saw, I asked him कि आप देखते हुए आते थे कि आप अंदर क्यों नहीं जाते, तो वो कहते थे बेटा वो अदब का मकाम है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं बाहर खड़े होने की लायक नहीं, हमारी क्या औकात है कि उस नूर उसके सामने भी हम लोग खड़े हो सके, वो तो उनका प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है सरकार का हमारे लिए कि हम वहां पर हैं, हमें ये मौका दिया कि हम उनकी खिदमत कर सके। वो कहते अगर मैं अंदर गया और मेरी आंखों में भी कुछ यू नो लाग लपट झोल झाल, तो मैं अपने आप में कभी अपने आप ही वो समझ नहीं पाऊंगा कि क्या। तो वो कहते मैं अपनी आंखों से, अपने एक्शन से, अपने हार्ट से भी ना सरकार के सामने नजरें नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी नियत मुझे नहीं पता कब क्या होगी, तो उनके सामने तो इतनी पाक नियत होनी चाहिए, उनके
पास हो, और कोई गुस्ताखी ना हो जाए, थॉट प्रोसेस में भी गुस्ताखी ना हो जाए। Right, पता right. चल अंदर गए, कुछ समझ में नहीं आया और कुछ सोच लिया, तो अब्बाजान के लिए इवन थिंकिंग थॉट भी ऐसे नहीं आने चाहिए कि उस पवित्र स्थान पर कुछ उनसे गुस्ताखी हो जाए। एंड Right, देन ऑफ कोर्स देन नेचुरल क्वेश्चन वुड बी, हम तो जा रहे हैं अब्बाजान, हम तो करते हैं, हमसे भी तो गुस्ताखी हो सकती है। देन से यू हैव टू सी, दिस इज आल्सो, he is calling you, maybe he understood my thing, I'm not going there, but if he wants, he is calling and you go. yeah. But when I'm telling you this thing, why I am not going, you should be more aware now. You should not, When you are going because there, when you're visiting yeah, them. Yeah, yeah. correct. And very few people understand this concept. Of course, my father was like, of course, he was a Sufi. I just would like to show his picture to you, Sonia. Wow. The ages and Yeah, I don't know how to. yeah, it's very, very, yeah. Thank you for showing. Okay. Yeah. Yeah. So I just thought कि I will just share. So वो बोलते थे मैं अंदर इसलिए नहीं जाता हूँ, मेरे से ख्वाबों में, ख्यालों में, सोच में, एक्शन में कोई गुस्ताखी ना हो, और वो दरबार पे मैं गुनाहगार नहीं हो सकता। So मुझे जहाँ तक याद है, मेरी जो, जब आप बोलते हैं ना कि जब मेरे में समझ आई, तो आप समझ सकते हैं मैं 8 साल से मैंने अपने अब्बाजान को अंदर जाते हुए नहीं देखा, और मुझे लगता है शायद वो उससे पहले से भी नहीं जाते होंगे। नहीं जाते हम। तो now I'm 42 years old. So तब तक तो हमने नहीं देखा था, 40 साल की उम्र तक तो हमने अब्बाजान को नहीं देखा था अंदर जाते हुए, ना मैंने ना मेरे भाई। So yeah, so that is something, उनका वो रुतबा है, like Thank you for sharing this beautiful thought, because I think everybody now who is going to visit Dargah Sharif will have, but whosoever will get an opportunity to watch this video will have this thought process that they have to keep their intentions very clean and clear. And for that matter, it applies to each and every divine yeah, faith. every religion I feel कि आप वहाँ every जाके भी, क्योंकि as a human being, as a human nature, it is your nature to not, मतलब वो तो बहुत संत लोग हैं जो अच्छा ही सोचते हैं हमेशा, बट हमारे को कभी लालच आ जाता है, कभी कुछ, हम मंदिर में खड़े होते हैं पर हम सोचते हैं अरे मेरा नेकलेस ठीक लग रहा है क्या, आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल एग्जांपल, राइट? तो वो वाली बात नहीं, आप ये बाहर भी सोच सकते हैं, बट आप वहाँ गए ना, मैं ये कह रही हूँ आप 1 घंटा बिताएं, 2 घंटा, लेकिन कम से कम 10 सेकंड ऐसे बिताएं कि आपके और उसके बीच में कोई नहीं हो, कोई नहीं। दिस इज माय फादर यूज्ड टू से। बस वो जो 2 पल भी आपको मिल गए ना कि इट्स बिटवीन यू एंड हिम और हर, मैं ये नहीं बोली ऊपर की हिम है कि हर है, आई डोंट नो कौन है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जहां आप जा रहे हो, चाहे वो आपका गुरु हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका मंदिर हो, चाहे वो आपके जो होते हैं ना आपके आपकी कास्ट में बोलते हैं ना हमारे गुरु हैं, और वो जहाँ से आपका कास्ट सिस्टम आता है, कुल गुरु, तो कहीं पे भी आप कुल गुरु के भी मंदिर होते हैं, तो आप वहां पे भी जा रहे हैं, तो बस उस पूरे प्रोसेस में ना, अगर आपको 2 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 2 सेकंड भी अगर आपने कर लिया ना वो कनेक्शन, वो बहुत है। And yes, I would like to, I forgot to tell you, Sonia, I love this name Spiritual Connect, and it's beautiful, and I wish you lots of success in changing people. Yeah, in changing people's thought process, lots of success in making, even if you change is like change the thought process of one person and he becomes respectful, or he understands spirituality, I think your deed is done. Yeah. So so congratulations. The idea, thank you. And the idea is now the important part of this this whole series is we have to share the miracles what we've experienced in our life. So I want you to talk about any experience anywhere which you have experienced in your life where you felt that this is not my effort, but my effort is there, but this is some miracle power is also there, or divine power is there which has made this happen. कुछ तो ऐसा experience किया. I might sound esoteric, but I must say that Sonia, every second is a miracle. Right. Breathing itself is the biggest miracle of all. I think but like yes, we know that yes, we like stories. We like stories. Yeah, we like stories. We like stories. हमने अपनी नानियाँ, if you ask me, sun is a miracle for me, moon is a miracle for me, but yeah, we like stories. Yeah. So you have to share the story. That's what I'm saying, क्योंकि हमें आदत हो, बचपन से पढ़ी हुई है ना, नानी की कहानियाँ, मम्मी कहानी सुना के सुलाती है. Now I want Malia की कहानियाँ.
So as I said कि every day is a miracle, और मैं ख्वाजा साहब को लेके बोलूंगी सोनिया, हर पल, हर सेकंड, हर आयोटा ऑफ सेकंड वहां मिरेकल्स होते हैं. बट अगर आप ऐसे बोलेंगे कि आपने आपने कैसे देखे, तो सिर्फ मैं बचपन से मैं बोल रही ना, मैं अपने आप को जितना ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहती हूँ, बट वो ह्यूमिलिटी आ नहीं पाती है. Yeah. वो आ नहीं रही क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई हैव सीन अ बेटर वर्जन ऑफ ह्यूमिलिटी इन योर ब्रदर. यहाँ मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज भाई अब अब्बाजान की गद्दी पे बैठ रहे हैं, क्योंकि अब्बाजान ने पर्दा फरमा लिया है, तो अब भाई अब्बाजान की गद्दी पे बैठते हैं, तो यू नो समटाइम्स नेचुरली आल्सो थिंग्स कम. कुदरती भी, क्योंकि और अब्बाजान हमारे गुरु भी हैं, उनसे हमने दीक्षा भी ली रखी है, और उर्दू में और अरबी में हम लोग, हमारे पीर हैं वो, उनसे हमने बिल्कुल, उनसे दोनों भाई बहन हम उनके मुरीद हैं. सो वो भी एक हमारी ब्लेसिंग है. तो मैं ना आपको मिरेकल्स की तो पूरी कड़ियां और सदियां पूरी निकल जाएंगी बताते हुए रोज के मिरेकल, पर छोटे छोटे ही बता सकती हूँ कि मिरेकल से पहले एक छोटी सी चीज अब्बाजान के बारे में बताना चाहूंगी, बिकॉज इट इज आल्सो रिलेटेड टू अ मिरेकल, some sort of miracle, but we tricked him in a way. So my father ना, he's a Sufi saint, and वो मुरीद नहीं बना, उन्होंने काफी पहले मुरीद बनाना छोड़ दिए थे, दीक्षा देना छोड़ दी थी कि नहीं अब सब मुझे नहीं करना. एंड व्हेन वी यूज्ड टू से कि हम एक्चुअली इस्लाम में ऐसा होता है सुनिए कि आपका कोई पीर होना चाहिए, ये कंपल्शन होता है, लेकिन ठीक है, जिसको होता है, जिसके मन से चाह होती है वो, तो हम लोगों को मन से पीर बनाना था, किसी को गुरु, मेंटर, जो भी आप कह सके. एंड अब्बाजान को हमने ऐसे ही बोला, मैंने बोला, भाई ने बोला, तो बोला नहीं नहीं आप ढूंढिए, दुनिया में बहुत बेहतर पीर मिलेंगे आपको, बहुत बेहतर. मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल किसी लायक नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को अपना मुरीद बना सकूं. वी बोथ वर डिसहार्टेंड, बट देन भाई ने बोला कोई बात नहीं, कि हम ढूंढते हैं, चलो कोई बात नहीं. एंड देन सिंस वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, हमारी पूरी फैमिली में, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, तो मेरा यही था कि मेरा भाई जिससे मुरीद होगा मैं उसी से होंगी. सो इट वाज डन डील, कि सोचना नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, भाई जहां मैं वहां. एंड तो माय ब्रदर, यू वोंट बिलीव सोनिया, दिस इज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ मिरेकल ओनली. वो 7 साल ढूंढा उसने अपने पीर को. ही इज गॉन टू पाकिस्तान, Iran, मतलब he just travel, he likes to travel also. So he was traveling different cities, holy cities, normal cities, UP, MP, and you know पूरे हर साल हम लोग बोलते थे भाई कोई मिला क्या, नहीं यार बहन कोई मजा नहीं आया, कुछ ऐसा दिल से नहीं लगा, दिल से नहीं लगा. After 7 years ना, he was like, फिर मैं बोला अब क्या करना, कह रहा बहन मैंने तो बहुत ढूंढा, मतलब पाकिस्तान पाक पट्टन शरीफ, वो भी सरकार ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की ही गद्दी है वहां पे भी, पाकिस्तान में. भाई वहां तक भी है, वहां पे भी ना क्लिक नहीं हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग है, मतलब मेरा सर उनकी पैरों में, कदमों में, लेकिन यहाँ तक रूह तक बात नहीं पहुंच पा रही है, आपकी सोल तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है. मैंने ठीक है अब क्या करें, देन ही इज लाइक यू नो कुछ नहीं बहन, हम तो अब्बाजान से ही होंगे. मैंने कहा अब्बाजान तो करेंगे नहीं, कैसे करेंगे हम लोग ये चीज. कह रहा कुछ तो करना पड़ेगा, मैं तो दुनिया घूम आया, इनसे बेहतर मुझे कोई नहीं दिखा. दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी. आई सेड ओके आप कैसे करेंगे, कह रहा कोई तो करते हैं, कुछ प्लान करते हैं. सो अब्बाजान ना दरबार शरीफ में एक बार जाते हैं, मतलब मेन एंट्रेंस पे नहीं, बाहर जो दालान है सरकार का, वहां पे अब्बाजान साल में एक बार महफिल में जाते हैं. एंड देन एज आई टोल्ड यू ही ऑलवेज सिट्स लाइक दिस, ही डजंट रेज हिज आईज और व्हाटएवर. एंड वो महफिल में एक ही बार दरबार शरीफ जाते हैं. और अब हमें पता हो किस तरह का रिस्पेक्ट है, किस तरह की मोहब्बत है, किस तरह का इश्क है, क्योंकि हमने हमारे वालिद में ये चीज देखी है कि इश्क किसे कहते हैं. तो थैंक गॉड उसका शायद 1% का आधा % हम लोगों में आया है. आई वोंट से इवन 1% भी, क्योंकि उनके इश्क की तो हम बता ही नहीं सकते वो क्या है. सो ही वेंट देयर एंड यू नो जब वो फंक्शन जब खत्म होता है, और अब्बाजान के अपने गुरु की याद में भी फंक्शन करते हैं, जब वो फंक्शन दरबार शरीफ में खत्म होता है तो अब्बाजान वहां पे जाते हैं चौखट पे सर झुकाने के लिए. और जब वो उठते हैं तो मेरा भाई उनके सामने बैठे हुए, तो अब्बाजान ऐसे चौक के, क्या हुआ अब्बाजान आपको मुरीद बनाना है. अब वो दरबार जहां मेरे अब्बाजान की आंखें नहीं उठती है, वहां पे जबान कैसे खुलेगी. ठीक है. So that's how he tricked him, that's how we tricked him. And then फिर हाथ आगे बढ़ाया, जो भी रस्में होती, छोटी सी रस्म करी, वो भाई उठे, मैं बैठ गई. देन ही लुक्ड एट मी कि ये क्या हो रहा है. तो मैंने कहा
because he couldn't say, he was stuck because he couldn't say ये क्या कर रहे हो आप, मैं तो ना तो वो बोल ही नहीं सकते थे ना उस दरबार शरीफ में, कुछ भी किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोल सकते थे उस टाइम। उनसे कोई बोलता था अरे आपकी जान हमें चाहिए, वो कहते ले लीजिए। इस किस्म का इश्क रहा है उनको सरकार से। तो मतलब उनका तो एक ही, मतलब उनको माँ भी वही थे, बाप भी वही थे, लवर भी वही थे, वाइफ भी वही थे, औलाद भी वही थे, गुरु भी वही थे। I want you to share the last piece of his journey, how he found his place over there. वो अगर तुम बताओगे तो we'll be the we'll understand, and quickly you will share how to reach Ajmeshri after this. So there are questions. So then I'm just finishing this. Then I became उनकी शिष्य, मैं भी उनकी शिष्य बन गई। अब you won't believe, सबको समझ में आ गया कि बाबा साहब मुरीद बना रहे। You won't believe, मेरे पीछे ना 25-30 लोग खड़े हुए हैं फटाफट आके कि यही मौका कर लो। और उस चक्कर में 10-15 लोग आते गए। अब्बा जान ना दो जोनों मतलब बैठना, जैसे आप कैसे बैठते, दो पालकती नहीं होती वो, ऐसे आप बैठते हैं दो पैर ऐसे करके, तो वैसे बैठे हुए थे और बैक टू बैक लोग आ रहे। एंड में ना भाई गए, लोगों को बोला अरे नहीं भाई अब मत करो, वो आधे घंटे से ऐसे बैठे हुए हैं, वो उठेंगे नहीं जब तक, क्योंकि he couldn't do because he was stuck, he was trapped, which we are not very proud of. Yeah, we are not very proud of, honestly. But I'm still saying कि शायद हमने बहुत अच्छा किया कि हमने वो कदम उठाया, क्योंकि हमें ऐसा पीर दुनिया में नहीं मिलता, हमें ऐसा बाप दुनिया में नहीं मिलता, हमें ऐसा दोस्त दुनिया में नहीं मिलता। So finally we came home and then he called for sweets, and एक रस्म होती है मुंह मीठा कराने की कि तुम्हें अपना गुरु मिला है दुनिया में। So we did it all that and it was okay. So yeah, of course journey, मतलब मैं तो कह रही ये भी एक miracle है कि how my brother looked for 7 years but he found in my father only. तो हाजी साहब भी चाहते हैं। Yeah. दिया तले okay, so now you want to know about दिया तले अंधेरा. So now you want to know about his last journey. That's what you want to know. Yeah, I know, okay. And I was very overwhelmed by knowing this. So I want you to really talk about it. That how the love which he always had towards Dargah Sharif brought him over there only. Yeah. So honestly, it's just how do you say? मैं actually मुंबई में नहीं थी. I was traveling the next day for some work, and my brother was there. So when जब अब्बा जान ने पर्दा लिया और I'll correct you. You were not in Ajmer Sharif. You said the Mumbai. Yes, I was not in Ajmer Sharif. Oh, sorry. I was because I've started visualizing, so maybe I got carried away. Yeah, so I was not in Ajmer Sharif. I was in Mumbai. I had to go next day. I was traveling for work and all. And I just, I got a call around 11 at night that he's unwell. Of course, nobody says कि किसी को भी बुलाने के लिए कि कुछ हो गया. Anyways, I came and मतलब of course मैं अजमेर शरीफ पहुंच गई सुबह, और फिर अब्बा जान आराम फरमा रहे थे हमारे नीचे वाले रूम में. And I just hugged him and kissed him because ऐसा होता है, तरीकों में ऐसा होता है कि आप शरीर नहीं छू सकते हैं, एक बार गुस्ल हो जाए तो जब आप स्नान कर लें उसके बाद आप छू नहीं सकते. तो my brother waited for me to come because she would like to hug him, she would like to touch him, she would like to feel him. So I'm so grateful to my brother because इतना खूबसूरत भाई है मेरा, इतना उसको छोटी छोटी चीजों का एहसास था. Since I come from a community where people were saying कि बेटा इतनी देर नहीं रखना चाहिए क्योंकि रात में हुआ था, सुबह 8-9 बजे तक वो आएंगी, 12 घंटे क्यों वेट कर रहे हो. But my father said कि not at all. मेरी बहन आएगी. Yes, भाई खुशतर मियां, उनका नाम खुशतर है, खुशी में तर माशाल्लाह. तो उन्होंने बोला कि जब तक बाजी नहीं आएंगी अब्बा जान आराम करते रहेंगे यहाँ पर घर में. Thankfully to him, I just saw him, hugged him, loved him, of course. And so फिर भाई से बाद में पूछा कि अब्बा जान का कैसे क्या है, तो उन्होंने बोला सब इंतजाम हो चुका है. तो मैंने कहा कहाँ हुआ है, कहाँ ले जा रहे हैं? दरगाह शरीफ में. अब सुनिए ना, दरगाह शरीफ में एक जगह है जिसे कहते हैं चारी यारी मतलब वो ऐसा कहलाता है कि जहाँ पे 4 यार बैठ के मटर गश्ती करते हैं ना, एंजॉय करते हैं. 4 यार मिल जाए तो बात वही बन जाए वाला जो बात है ना, वो 4 यार वाली बात. तो वो एक एरिया है दरगाह शरीफ के अंदर ही, दरबार शरीफ की से थोड़ा सा दूरी, मतलब आप समझ लीजिए 30 सेकंड का रास्ता है वहां से. तो वहां पे 4 यार एक एरिया है, और अब्बा जान को हमेशा वो एरिया बहुत पसंद रहता था जब वो थे.
तो बोलने लगे कि मैं पूछती थी, वहाँ पे तो क्या, वहाँ पे सब बाबा लोग बैठते हैं वहाँ पे, तो मतलब सिंस नो नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी ना, मतलब वहाँ पे कौन से स्पिरिचुअल लोग हैं, वहाँ से बाबा लोग हैं, धुनकी में रहते हैं, अपने मस्त मलंग रहते हैं। एंड यूज्ड टू से नहीं, आई लाइक दैट प्लेस। और वहाँ पे ना लोगों ने अपनी अपनी जगह बना रखी है कि उनके फैमिली से कोई भी जाएगा तो वहां पे उनको शांत किया जाएगा या उनको दफनाया जाएगा। अब हम लोग ठहरे बहुत छोटे, हमारी ना औकात है ना हमारी हैसियत है कि दरबार शरीफ में हमारे को जगह, ना हमारे ऐसे कर्म साफ से बात कि हमको दरबार शरीफ में जगह मिले। तो अब्बा जी हमेशा बोलते थे भाई हम, मेरी तो कोई औकात नहीं कि मुझे उस दरबार शरीफ में जगह मिलेंगी, कहीं भी चला जाऊंगा मैं, पर मेरी पसंदीदा जगह वो है। पर बेटा मुझे पता है कि वो जगह तो अपनी अपनी कोई जगह ही नहीं है, हमारे खानदान की कोई जगह नहीं, तो हमें कहाँ से जगह मिलेंगी। तो वो बात हमेशा से खत्म हो जाती थी। बट जब अब्बाजान का ऐसे हॉस्पिटल में जब उनको लेकर गए थे और बात हुई, तो भाई से सबने आके पूछा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कैसे उनको कहाँ ले जाएंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे। तो अब्बाजान मतलब सॉरी तो मेरे भाई ने बोला कि हमारा एक फार्म हाउस है दूर थोड़ा, और तो भाई ने बोला भाई हमारे पास तो कोई जगह नहीं है, हम तो फार्म हाउस पे ले जाएंगे। और फार्म हाउस वहां से 45 मिनट्स दूर पर है अजमेर शरीफ से। तो सब लोग थोड़े से नाराज हो गए, इतनी दूर ले जाएंगे तो हम तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम तो मिल नहीं पाएंगे, हर रोज का कुछ नहीं होगा। तो भाई ने बोला भाई मेरे पास कोई जगह नहीं है, हमने हमारी ना खरीदी हुई कोई प्रॉपर्टी इस चीज के लिए, who would buy something like that because we didn't। so and और वही एक जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, जहाँ पे एक तरह का हम लोग कुछ बना सकते हैं ताकि हम लोग विजिट कर सकें, वहां बैठ सकें, इबादत कर सकें। तो इतने में I'm saying this with so much of gratitude and so much of humility and so much of मतलब every second of my being wants to thank my भाभी Najaf's family for that. So my brother was standing और मेरी भाभी के भाई आए, बोलने लगे कि हजरत क्या करेंगे आगे, अब क्या होगा। Then he said कि भाई हमें, मुझे नहीं पता, मैं तो फार्म हाउस में। उन्होंने बोला नहीं हम लोग इंतजाम करेंगे। तो मेरे भाई ने बोला आप कैसे करोगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दरबार शरीफ में जगह है हमारी, वहां पर लेकर जाएंगे। तो भाई ने बोला कि कहाँ, तो बोले कि वहां पर चारियारी में हमें हमारी जगह है, जहाँ पे अब्बा को पसंद था चारियारी। एंड माय ब्रदर इज टेलिंग मी द स्टोरी एंड सेइंग यू नो अब्बा जान इज आराम कर रहे हैं इधर, और मेरे को ना एक छोटी सी चमक भी आई मेरी आंखों में, 4 यार, यार मेरे आपको 4 यार की जगह मिलेगी, जो उनकी ख्वाहिश थी वो मिलेगी। तो उन्होंने फिर से पूछा अरे भाई आप क्या बोल रहे हो, आप आर यू ऑलराइट कि 4 यार में हमारा कुछ नहीं है। कहने लगे हमारी जगह हम देंगे। तो बोला आपकी फैमिली, कहने लगे हम फैमिली ही तो है। तो जस्ट हम फैमिली ही तो है। एंड लुक एट द ग्रेटनेस, क्या ग्रेटनेस है यार इस चीज में। एंड देन ही सेड वी विल डू इट। And then finally, मेरे अब्बा जी, then how he got that place, कैसे कैसे रिश्ता बना, कैसे नजफ हमारे घर में आई, हमारी फैमिली बनी, हमारी फैमिली हुई। एंड कैसे उनकी फैमिली मतलब मैटरनल साइड में किस तरह से हमें अपनाया और किस तरह से। तो मुझे कभी कभी ना ये लगता है ये सब जरिया रहा है कि आप ना बस इश्क करते रहो, he is taking care of everything। मतलब जस्ट अपना मोहब्बत इश्क लगा के करते रहो, बाकी सब होता रहेगा। और मतलब this is one of the हमको वो ना ज्यादा स्ट्रेटजी करनी नहीं चाहिए, बस मतलब जस्ट लीव इट ऑन सरेंडरिंग, उसी को कहते हैं। बहुत ह्यूमन माइंड जो बहुत चलता रहता है ना, वो नहीं करना चाहिए। हमारा मतलब मैं तो ये सोचती हूँ ना, मैंने ना जो स्पिरिचुअलिटी कह लो सोनिया या इश्क कह लो, हमारे अब्बा जान के जुबान से ना हमें सिर्फ या हक मोइन या मोइन, हक मोइन या मोइन ही सुना है, क्योंकि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम मोइन है। और पता है इतनी मासूमियत से वो कहते, वो बोलते थे हक मोइन या मोइन हक, कितना खूबसूरत नाम है, देखो मोइन कितना प्यारा नाम है। सो ऐसी चीजें हम जब सुनते थे, हम देखते थे, हम पहले तो सॉरी प्लीज माइंड माय लैंग्वेज, पहले मैं सोचती कि किस तरह की मोहब्बत है कि किसी को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, फील नहीं किया। व्हेन आई वाज यंगर कैसे इश्क हो जाता है यार। बिकॉज मेरे लिए प्यार ये था कि प्यार कर रहे हो तो सामने होना चाहिए, कुछ समझ होनी चाहिए, कुछ फील होना चाहिए। मैं समझ ही नहीं पाती थी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट सोनिया, टिल द एज ऑफ आई वाज इन कॉलेज विद इन दिल्ली, राइट,
even then I did not have this breakthrough or this enlightenment, I could say. Abhi bhi I'm not enlightened, I'm just giving you an example. Yeah. मैं कॉलेज तक मुझे ना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था कि हाउ, वेयर, कैसे, क्यों, कब, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और मैं भाई से हमेशा बोलती थी यार, बिकॉज आई हैव सीन माय फादर क्राइंग फॉर नो रीजन आउट ऑफ लव, remembering him with tears. I think that And those I'm are the like, tears of ecstasy. मतलब एक yeah, and I'm like this. And then I saw my brother who is 2 years younger to me, and I saw him, he's also on the same. And I'm like, यार मैंने क्या गलती की, मुझे क्यों नहीं फील होती ये चीजें? Why I'm not crying? Why I'm not feeling happiness? करम अभी भी बहुत Yeah, you know, like, काटते and initially I was like, okay, I don't care. But then धीरे धीरे I asked my brother, like, यार मुझे क्यों नहीं होता है? अब्बा जान मुझे क्यों नहीं होता है? Then my अब्बा जान is a very kind man, but my brother is a very honest man. ठीक है? So he said, ये कुदरत ही मोहब्बत डालती है आपके अंदर, ये कुदरत ही इश्क डालती है। ये ऐसा कुछ नहीं कि एकदम सडनली यू डिसाइड आई विल लव दिस पर्सन एंड जस्ट लग जाओ, नहीं, ये भी एक ब्लेसिंग है, नियामत है ऊपर वाले की तरफ से कि आपके दिल में, आपके जमीर में, आपकी रूह में उसकी मोहब्बत डाले, चाहे वो कोई भी रिलीजन में हो। मैं वही बोलती हूँ, कई लोग शिव भक्त होते हैं, तो मुझे लगता है कि शिव जी ने ही उनको मोहब्बत करने के लिए वो दिया है कि मुझसे तुम मोहब्बत कर सकते हो। मोहब्बत सब करते हैं। साईं सत्य चरित्र की बाबा ना अपने डिवोटी को ना 7 समुद्र पार से भी ना खींच लाते हैं, जैसे एक चिड़िया के पैर में धागा बांध लेते हो वैसे वो खींच लाते हैं। तो इट्स लाइक तो ये ना हम लोगों को लगता है हम चाहते हैं, हम अपना रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं। नहीं भाई, हम तो किसी लायक नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हम तो बिल्कुल मामूली अंश है, जो अंश के भी अंश होंगे, जो हमको बड़ा ये समझना, हमें बड़ा नहीं समझना, हमें सोचना जी थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी लव यू, थैंक यू सो मच कि मुझे आपको प्यार करने का मौका दिया आपने। इट्स नॉट वेरी, मतलब ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत डीप बात है कि हम किसी को प्यार कर सके ना, ये भी एक ब्लेसिंग है। राइट, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट हैज वेरी थोड़ा thank you for having this conversation with me. It was very, very touching. I don't know if the time permits or not, but if it doesn't, then probably we have to, put it in the next link. If you can quickly tell me how to reach Ajmer Sharif, to our listeners, how to reach there, Dargah Sharif. तो इट्स वेरी इजी नाउ, तो हर जगह से फ्लाइट्स हैं जयपुर के लिए, और दिल्ली से तो किशनगढ़ में फ्लाइट है। किशनगढ़ 45 मिनट दूर है अजमेर शरीफ से। आप किशनगढ़ में उतरेंगे और टैक्सी वगैरह जो भी साधन है वो लेके आप दरबार शरीफ आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इजी वे बता दूंगी कि आप कहीं भी सफर हाँ ट्रेन, तो आप कहीं से भी सफर कर रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सोनिया के थ्रू, या आप, तो मैं आपको अपने भाई से कांटेक्ट करवाऊंगी। जैसे ही आपका अजमेर शरीफ में आने का इरादा है, जिसका भी बुलावा आएगा, चाहे वो फ्लाइट से आए, ट्रेन से आए हैं या बाय रोड आए, प्लीज कांटेक्ट करें। हमारी फैमिली और भाई पूरे इंतजाम करेंगे आपके रहने का, खाने का और आपके दर्शनों का। और उसके बाद आप जब पहुंचेंगे, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, तो अगर मौका रहा और अवेलेबिलिटी रही तो घर से गाड़ी भी पिकअप करने आ जाती है। एंड वो आप हमारे छोटा सा गेस्ट हाउस है, बहुत छोटा है, वहां पे ले जाएंगे, वहां पे आप आराम से करिए, फ्रेशन अप होइए वगैरह। उसके बाद भाई आपसे मिलेंगे, भाई आपसे बात करेंगे, और उसके बाद आप दरबार शरीफ में हाजिरी के लिए जा सकते हैं। तो कोई भी साधन हो, आई थिंक अभी तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज इजी, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको दर्शन कराने के लिए मुझे पता है कि आपको खादिम की जरूरत होती है, ताकि आपको अच्छे से दर्शन हो सके। बिकॉज सिंस किसी भी मंदिर में आप पंडित के बिना जाने का मजा नहीं, सेम वे दरबार शरीफ में बिना खादिम के आप अधूरे हो, मुझे ऐसा लगता है। आई मे बी रॉन्ग एंड प्लीज फॉरगिव मी इफ समबडी थिंक्स आई एम रॉन्ग। आई एम नॉट सेइंग कि दरबार शरीफ में आप अकेले नहीं जा सकते, हमारे बिना नहीं जा सकते। Just not trying to sell this, but the idea is that it's always good to have जिस चीज को उस जगह के हम पता होता है, जैसे हम बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इधर भी हम अगर एक्सपर्ट के साथ जाएं तो वेरी ऑल टुगेदर वेरी ट्रू, एंड आपको वो सब समझा सकेंगे बेहतर तरीके से। और मैं मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग वी आर ओनली खादिम्स ऑफ द दरबार शरीफ, वी आर नॉट ओनर्स। अगर किसी को लगता है कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ आ रहा है, हम सिर्फ खादिम हैं, खिदमत करने वाले दरबार शरीफ के सेवक हैं, ख्वाजा साहब के,
और ख्वाजा साहब के जो भी मेहमान, जो भी जायरीन, जो भी गेस्ट आता है वो हमारा गेस्ट है। इसलिए हम लोग आगे रह के पूछते हैं कि आपके लिए हम क्या कर सके, या आपके लिए आपको और क्या चाहिए। तो हमें वो खिदमत का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, आप ख्वाजा साहब से मिलने आ रहे हैं। तो जो ख्वाजा का वो हमारा। So that Right. is the this. Thank you, Malia. For again, I'll say thank you for explaining it so beautifully. Things about Dargah Sharif and some experiences of your life. Thank you so much for giving your time for this. And let's hope that if we get good response, we'll probably shoot another video which will talk about Darbar Sharif and other beautiful places which we have. Yeah, ख्वाजा साहब, I told you ना, sorry to interrupt, but I told you ख्वाजा साहब के miracles, ख्वाजा साहब की stories is like, आपके कम से कम 25-30 चैप्टर चले जाएंगे आपके। lot many stories. हम लोगों ने तो अभी छुआ भी नहीं है। हम लोगों ने किसी से, हाँ, हम लोगों ने तो अभी तक दरवाजे में पहुंचे नहीं। दरवाजा खुलेगा ना तो बस आप सब ओवरवेल्म हो जाएंगे, किस दरबार में है, किस दरबार की बात हो रही है। सब से बाहर से ना पेरिफेरी से बातें कर रहा है ऑनेस्टली। एंड मैं लास्ट में जरूर ये बोलना चाहूंगी सोनिया, आपके दोस्तों को और मैं ख्वाजा साहब के चाहने वालों को और मेरी कम्युनिटी को, मेरे भाई बंधुओं को, कि अगर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हो गई हो दरबार शरीफ के बारे में बताने में, कोई गुस्ताखी हो गई हो दरबार शरीफ के हजरत हुजूर का नाम लेने में, या उनको कोई भी बेअदबी हो गई हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करिएगा। I'm not the best person, but I got this opportunity to speak about him, so I got excited and I'm speaking. Please forgive me for any. Only our love for Dargah Sharif. That's what we are here together for. And yes. Apologies to all the viewers. And I'm very privileged. I know I'm very privileged. I'm blessed to be born in this family, to be born in a daughter of Baba Sahib, because my father is known as Baba Sahib. And now my brother is known as Baba Sahib. So yeah, that's it for now. And thank you so much for this opportunity. Thank you so much. Take care. Bye-bye.